السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویڈیو بڑی کمال کی ہے، اگر آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ حیران بھی ہوگے کہ یہ کیسا پنڈت ہے جس کو یہی نہیں خبر کہ ان کا جو بھگوان ہے برما کیا نام ہے اس نے اپنی بیٹی سے ہی شادی کر لی، اور کیسا یہ ان کا عقیدہ، یعنی کیسا یہ ان کا ہے دھرم کے، اس کے اندر بیٹی کے ساتھ ہی بھگوان نے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو بڑی کمال کی ہے، اور جو عورت سوال کر رہی ہے نا، اس میں نے ایک مرتبہ پنڈت کو ہلا کے رکھ دیا، یعنی لال پیلا ہو گیا پنڈت، یعنی غصے میں آ گیا، تو وہ آگے سے لڑائی کی طرف چل پڑا ہے۔ تو آئیے ناظرین، وہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والہ سے ہم آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو سنائیں گے، تو پھر انشاءاللہ اسی والہ سے ہم بھی بات کریں گے۔ تو چلیں ناظرین، مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو لوگ سرسوتی ماں کو بولتے ہیں ان کی پتنی ہے، کوئی بولتا وہ سرسوتی، اب لوگوں کو گیان نہیں ہے تو اس کا ٹھیکہ ہم لیے ہیں۔ نہیں گرو جی، گیان اب گیان ہے لوگوں کے اندر۔ لوگ کہتے ہیں کہ برہما جی نے اپنی بیٹی سے وواہ کر لیا، کہاں لکھا ہے؟ کہیں نہیں لکھا، من مانا۔ ارے جو برہما جی کی پتنی ہے وہ سرسوتی الگ ہے، اور جو بیٹی ہیں وہ الگ ہے۔ ایک ہے برہما، ایک ہے برہما، اتنے میں لوگ اندر نہیں سمجھ پاتے۔ سرسوتی جی برہما جی کی پتری بھی لگتی ہیں، پتنی بھی لگتی ہیں۔ اب آپ یہاں کہیں گے پتری ہے تو پتنی کیسے؟ تو میں آپ کو اسپشٹ کر دوں، سرسوتی برہما جی سے اتپن ہوئی ہے نا۔ تو برہما جی کے 5 مکھ تھے۔ جب برہما جی پرگٹ ہوئے تب برہما جی 5 مکھ والے تھے۔ تو جس مکھ سے انہوں نے سرسوتی کو دیکھا تو وہ موہت ہو گئے۔ بعد میں سنکادیوں نے کہا کہ آپ موہت ہو گئے ہیں، آپ کو پاپ لگا، اب آپ تیاگ کر دیجئے۔ تب برہما جی نے اپنے اس سر کا تیاگ کر دیے، اور وہ سر کوہرا، جو ٹھنڈی سردی میں کوہرا پڑتا ہے، وہی کوہرے کے روپ میں ہم سب دیکھتے ہیں۔ پھر ان کے 4 جو سر ہیں، اس کا ایک آدھیاتم وشے بھی ہے۔ سرسوتی جی، برہما جی کا سرسوتی پر موہت ہو جانا، اس کا تاتپریہ ہے سرسوتی جو ہے یہ ودیا کی، تو برہما جی سے وید پرگٹ ہوئے، تو برہما جی اپنے ہی گیان پر موہت ہو گئے، ودیا پر، اپنی ہی ودیا پر۔ جیسے ہم کئی بار بہت اچھی بات جب کتھا سے سناتے ہیں تو ہم اپنے آپ بلیو نہیں کرتے کہ یہ بات ہم کر رہے ہیں، ہاں یہ ہم بول رہے ہیں۔ کئی بار ہم بھجن سنتے ہیں، ہمارے اپنے ہی گائے ہوئے، تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، مطلب اپنی ہی واणी پر موہت ہو جانا۔ تو برہما جی کا سرسوتی پر موہ ایسا ہے کہ اپنے ہی گیان پر، اپنی ہی ودیا پر موہت ہونا، یہ سرسوتی پر موہت ہونے کا ارتھ ہے، نہ کہ سرسوتی وہ استری والا موہت ہونا، وہ نہیں۔ متروں، کیا برہما جی نے اپنی بیٹی سرسوتی سے وواہ کیا تھا؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا برہما جی کی بیٹی اور پتنی دونوں بھی ہے سرسوتی؟ متروں، یہ صحیح ہے کہ ایسا ورنن پرانا میں ہے۔ دوستو، عام سماجک جو ہے پرمپرا، اس کے انوسار اپنی کی بیٹی سے وواہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہوا ہے وواہ، یہ اس کا گواہ ہے ہمارا پران۔ اور ایسی باتیں جب دوسرے پنتھوں کے لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہمارے دھرم کا بھی اڑاتے ہیں مذاق۔ قرآن میں جس سے ممانعت ہے، جو آپ کے لیے شادی میں حرام ہے، اس کا ذکر کہا گیا سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 22، 23 اور 24 میں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہوں کہ اسلام میں کہا گیا کہ آپ اپنی ماں سے نہیں شادی کر سکتے، آپ کی بہن سے نہیں، آپ کی بیٹی سے نہیں، آپ کے بھائی کی بیٹی سے نہیں، آپ کی بہن کی بیٹی سے نہیں، آپ کے والدہ کے بہن سے نہیں، آپ کے والد کی بہن سے نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اندر چچا جاد بھائی اور بہن کا ذکر نہیں ہے، تو کیوں الاؤڈ ہے؟ اسے کہتے ہیں کانسینگوینس میریجز، انگریزی میں کہتے ہیں کانسینگوینس میریجز۔ آج کی سائنس جو کہتی ہے کانسینگوینس میرج سے دے کین بی جینیٹک پرابلمس،
लेकिन गौर किया जाएगा तो आज की साइंस ये कहती है कि अगर आप अपने सगे भाई या बहन से शादी करते हैं तो बहुत इम्कानात है कि देर में भी जेनेटिक प्रॉब्लम, आपको कई बीमारियां होंगी। आपका सगा भाई सगा बहन नहीं तो भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इस्लाम में चचाजाद भाई और चचाजाद बहन या फर्स्ट कजन से शादी करने की इजाजत है। तो साइंस ये नहीं कहती कि फर्स्ट कजन से करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर लगातार कंटिन्यूसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन पीढ़ी के बाद पीढ़ी करते रहेंगे तो चांसेस है कि प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर अहमद सखर अपने तकरीर में कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन लगातार पीढ़ी के बाद पीढ़ी अपने फर्स्ट कजिन चचाजाद बहन या भाई में शादी मत करो, इससे बीमारी के इम्कानात है। लेकिन एक बार करने से नहीं है, डायरेक्ट सगा बहन और भाई से करेंगे तो बीमारी होंगी, आमतौर पे नहीं होंगी। भाई साहब ने पूछा है कि एक पुरुष एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है, लेकिन कुरान में लिखा है कि एक से ज़्यादा से कर सकते हैं, तो इसकी वजह क्या है? आप अगर दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे, कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जिसमें लिखा है कि एक आदमी एक औरत से शादी करो। आप दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे तो अक्सर मज़हब की किताब में लिखा है कि आप कितनी भी औरतों से शादी कर सकते हैं। जब आप पढ़ते रामायण, आपकी हिंदू मजहब की किताब, रामायण में लिखा है कि श्री राम के वालिद की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? बहुत से। दशरथ की कितनी बीवियां थी? लेकिन वो ठीक नहीं है, उनका थी। ठीक नहीं है, पूछता हूँ कितनी बीवियां थी, आपसे पूछ रहा हूँ कितनी बीवियां थी? दशरथ को 4 थे। कितनी थी? 4 थी। आप 4 कहते, चलो मान लिया मैं, 3 बीवियां थी। वो उसमें रामायण में इन्हें लिखा है कि श्री राम के वालिद ने गुनाह किया, लिखा है? नहीं लिखा है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा। श्री कृष्ण ठीक नहीं किए, कैसे आदमी है? श्री कृष्ण को गलत बोल रहे आप, कमाल होगा, हिंदू लोग आपको मारेंगे। श्री कृष्ण गलत कर सकते? श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? आपके मुताबिक श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? हम तो श्री कृष्ण को तो गॉड मानते हैं। गॉड मानते हैं, बिल्कुल सही। तो गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? अच्छा, आपके श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? बहुत से। तो कितनी? बहुत से मतलब कितनी? 16,000 कहे। 16,000 ने 16,108 थे। एग्जैक्ट बोलिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, तो श्री कृष्ण के 16,108 रहती है, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं रह सकती है? आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। जो आप दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे, हिंदू मज़हब, यहूद मज़हब, ईसाई मज़हब में आप कितनी भी बीवियां रख सकते। लेकिन इस्लाम में, कुरान में लिखा है, सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, क्या मैरी वुमेन इज फॉर चॉइस इन 2, 3 और 4, बट इफ यू कांट डू जस्टिस मैरी ओनली 1। आप अपनी मनपसंद औरतों से शादी कर सकते, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप इनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। तो ये जुमला सिर्फ एक से शादी करना, ये सिर्फ कुरान में लिखा है। हिंदू मजहब के हिसाब से, ईसाई मजहब के हिसाब से, यहूद मजहब के हिसाब से आप कितनी भी शादी कर सकते, 5, 10 हजार, 16,000, कोई ममानियत नहीं। कुरान में आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते 4, लेकिन अगर बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक। तो ये आयत सिर्फ कुरान में। अभी देखेंगे क्यों इस्लाम में एक मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। आमतौर पे लड़की और लड़का, मेल एंड फीमेल आर बॉर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ, लेकिन आप कोई भी डॉक्टर से पूछिए, जो बच्चों का डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन, वो कहेगा कि द फीमेल चाइल्ड इज द स्ट्रॉन्गर सेक्स। जो फीमेल लड़की है, जो बच्ची है, वो लड़के से ज्यादा ताकतवर है मेडिकली। ताकतवर मतलब मेडिकल जर्म्स को फाइट करने के लिए, बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए। अ फीमेल चाइल्ड कैन फाइट द जर्म्स एंड डिजीज इज मच बेटर। तो पीडियाट्रिक एज इटसेल्फ में लड़के की मौत लड़की से ज्यादा है। जब जिंदगी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि कई लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, शराब की वजह से, ड्रग की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ वॉर।
अक्सर मर्द लोग ज़्यादा मर रहे औरत से। आज की तहकीक ये कहती है कि दुनिया में औरत मर्द से ज़्यादा है। सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर 10 लाख से ज़्यादा औरतें मर्द से ज़्यादा है। सिर्फ यूएसए में 7.8 मिलियन फीमेल्स, 78 लाख फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। इन जर्मनी अलोन 50 लाख फीमेल मेल से ज़्यादा है। यूके में सिर्फ 40 लाख औरतें आदमियों से ज़्यादा है। रशिया में 90 लाख औरतें आदमी से ज़्यादा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है कितनी लाखों औरतें, करोड़ों औरतें आदमी से ज़्यादा है। सिर्फ चंद ममालिक में, इंडिया और दिगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में औरतें मर्द से कम है, क्योंकि हिंदुस्तान में फीमेल इन्फेंटिसाइड है, फीमेल फीटिसाइड है। बच्चा पैदा होने के पहले पता चल जाता लड़की है तो उसको अबॉर्शन करो। लड़की पैदा होती है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से 10 लड़कियां जब पैदा होती है 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है। ये नाजायज़ चीज़ जब ख़त्म होगी तो हिंदुस्तान में भी लड़कियों की तादाद आदमियों से ज़्यादा होगी। हम जब तहकीक करते पता चलता है कि दुनिया में करोड़ों औरतें मर्द से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में रह रही है और मार्केट सैचुरेटेड है, हर आदमी ने एक औरत से शादी कर ली, फिर भी 78 लाख 7.8 मिलियन फीमेल को शोहर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपकी बहन या मेरी बहन उन 7.8 मिलियन फीमेल में से जिनको शोहर नहीं मिला, उनके लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी बीवी मौजूद है, या वो बाजार की औरत बन जाए, बाजार की जीनत बन जाए। आप कहेंगे जाकिर बाजार की जीनत, इतना वाहियात लफ्ज, ये सबसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, पब्लिक प्रॉपर्टी, इससे अच्छा वर्ड मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूँ। और कोई भी मॉडेस्ट लड़की औरत ये कहेंगी कि जब दोनों के बीच में चॉइस है, मैं पसंद करूंगी एक आदमी की बीवी बनूं जिसकी बीवी मौजूद है बनिस्बत बाजार की जीनत बनूं। और अब देखते हैं कि यूएसए में एक आदमी 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले। कितने? 8। कोई करता है 2, कोई करता है 4, कोई नहीं करता है, कोई 20। एवरेज स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले, शादी करने के बाद नहीं लिखा है कितनी। ये यूएसए ये नहीं तस्लीम करता कि 2 बीवी। क्यों? इस्लाम में जब एक औरत एक आदमी की बीवी बनती है जिसकी बीवी है, दूसरी बीवी बनने के बावजूद उस औरत को इज्जत मिलती है, उसकी आबरू रहती है, उसको सारे अपने हुकूक मिलते हैं। जब बाजारी औरत को, बाजार की जीनत की औरत को अपने हुकूक नहीं मिलते, उसकी इज्जत नहीं रहती, उसकी आबरू नहीं रहती। इसीलिए इस्लाम में कुछ आदमियों को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है ताकि औरतों की इज्जत इस दुनिया में बरकरार रहे। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई, तो आइए नाज़रीन हम इसी वाला से बात करते चलें कि कैसा ये जालिम है जो कह रहे, यानी कि इनके भगवान जो इतना बड़ा जालिम है, उसने अपनी बेटी के साथ ही शादी कर ली। तो आइए नाज़रीन इसी वाला से हम देखते हैं शरीयत की तरफ, कुरान और हदीस की तरफ देखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आप किस्सा पढ़ेंगे, तफसीर इब्न कसीर का मुताला करेंगे, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि बड़े भाई कबील ने छोटे को, हबील को कत्ल कर दिया था। किस बिना पर? एक तो हसद था, दूसरे नंबर पे उनके यहाँ उनकी जो शरीयत थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो शरीयत थी, उस शरीयत के मुताबिक मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यानी कि ऐसा मैंने उस वक्त पहले बेटा बेटी यानी जुड़वा पैदा हुए हैं और फिर उसके बाद दोबारा फिर जुड़वा पैदा हुए। ऐसा कानून था, मसलन पहला जो बेटा है जो पहले पैदा हुआ है वो दूसरे की बहन के साथ शादी करेगा और जो दूसरे वो पहले की बहन के साथ शादी करेगा। तो नाज़रीन, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की बारी आई तो इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया और इस चीज़ से सख्ती से मना फरमा दिया गया कि कोई मर्द अपनी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता। तो नाज़रीन आप देखेंगे बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो बेटी के भी हुकूक बतलाए हैं, जबकि आप देखेंगे नबी पाक के आने से पहले बेटी की कोई कदर नहीं है, ज़िंदा दफन किया जा रहा है, औरत की कोई कदर नहीं है। बल्कि मैं तो ये भी पढ़ रहा था, रहमतुल्लाह आलमीन एक बुक है काजी सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की, उन्होंने लिखा है कि औरत की कोई कदर ही नहीं है। यानी कि ऐसा समझ लें कि जैसे हम देखें बस इधर
بازاروں کے اندر، یعنی کہ یہاں پہ ہمارے کالونی کوئی بستی یا کوئی گاؤں ہے، وہاں پہ منڈی لگتی ہے، جانوروں کی لگتی ہوگی، اور آپ دیکھیں گے سبزیوں کی منڈی لگتی ہے، لیکن وہاں پہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں کی یعنی کہ منڈی لگ رہی تھی۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کوئی اپنی بیٹی کو بیچنے کے لیے آیا، کوئی بہن کو بیچ رہی، استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ حالات تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بیٹی کے حقوق بتائے ہیں اور بہن کے حقوق بتائے ہیں، اور بتایا یہ آپ کی بیٹی بھی ہے، اور پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو یہ کسی کی بیوی بن جاتی ہے، پھر بچے ہوتے ہیں تو یہ ماں بن جاتی ہے، پھر اللہ پاک نے اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ تو ناظرین، پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو ان کے بھگوان نے یہ کام کیا ہے بہت یعنی کہ گناہ کا کام کیا ہے، اور دعا کرے اللہ پاک ایسے ظالم اور ایسے ہندوؤں کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرما دے، ان کو دین اسلام کی طرف آنے کی توفیق دے دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔